Hello students, we are here with the new video in our paper 1 series of constitutional law. We had already discussed the preamble in our previous video and we are going to start Indian constitution from this one. So starting with the articles, article 1 to article 4 it is part 1, and from article 5 to 11 it is part 2. So here in this video we'll cover part 1 and part 2 of constitutional law. So let us proceed with our lecture 3. Part 1, the union and its territories. Part 2, citizenship. Before starting with the topic, let's see what are the previous year questions asked. So the first question was asked that discuss the constitutional provisions regarding citizenship in India. How have the courts interpreted these provisions in the context of illegal migration? This was asked in 2021. Examine the significance of Article 1 of the Indian Constitution. How does it define the territorial extent of India? Asked in 2020. Analyze the provisions related to the acquisition and termination of Indian citizenship under the Constitution and the Citizenship Act 1955. So these three are the questions asked as per our topic. So we'll now come to the topic and then we'll see how we can frame the answers. Starting with the part 1, that is the union and its territories. There are 4 articles, namely Article 1 says name and the territory of the union. Article 2, admission and establishment of the new state. Article 3, formation of new states and alteration of areas, boundaries and name of existing states. Article 4, supplementary provisions. Now I would like to tell you that how you have to make notes of constitutional law. So you have to, in your notebook, you have to make a chart like this. Here you will write your articles. Here you will write the marginal head of your article. Here you can write your keywords and here the case laws. So if you make this kind of chart and start writing from article 1 to all the articles one by one, index will be prepared, and from that index you can just get a glimpse of your whole constitution, including the case law, including the keywords and marginal note of your article. So दिस टेबल शुड बी मेड फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ. आप वीडियो के साथ साथ पढ़ते जाइए और अपने आर्टिकल्स को इसी तरह से मेंशन करते जाइए. इजी हो जाएगा जब लास्ट में आपको फटाफट से रिवाइज करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से एक बार देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, आर्टिकल्स रिवाइज करने होंगे. तो रैदर दैन कि आप बुक खोल के पढ़ें या रैदर दैन कि आप डिटेल्ड नोट्स पढ़ें, इससे टैबुलर फॉर्म में पढ़ना वुड बी ईजी. सो मूविंग अहेड to our article 1, which says name and territory of the union. सबसे पहले तो आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 से 4 डील करता है यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि हम चेंजेस कर सकते हैं इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. तो टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या, ये हमें बताता है कौन सा, आर्टिकल नंबर 1. आर्टिकल नंबर 1 विल टेल कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होती है. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको ये बताता है आर्टिकल 1 में कि भारत या फिर इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब इसने यूनियन क्यों लिखा है, क्योंकि एक और वर्ड है फेडरेशन. फेडरेशन वर्सेस यूनियन. फेडरेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा यूएसए क्या फॉलो करता है, यूएसए फॉलोज फेडरेशन फॉर्म. फेडरेशन मतलब कि यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम बोलते हैं, तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वो एक अग्रीमेंट के साथ एक दूसरे से ज्वाइन हो रखे हैं. अगर वो चाहे, उनकी विल पे है, अगर वो चाहे उस फेडरेशन से या उस प्रॉपर जो उन्होंने बना रखा है एक एसोसिएशन, उससे अगर हटना चाहे तो वो हट सकता है, क्योंकि वो एक सेपरेट स्टेट है.
इसको बोलते हैं फेडरेशन, कि सिर्फ एक अग्रीमेंट से एक तरह से जुड़े रहना, और वो अगर मान लो कि स्टेट का मन नहीं है उस अग्रीमेंट को फॉलो करने का, तो वो जाके उस पर्टिकुलर जो फेडरेशन बना हुआ था उससे खुद को अलग भी कर सकता है। बट यूनियन क्या होता है, यूनियन के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, वो एक तरह का इनडिस्ट्रक्टिबल चीज़ हो जाएगी कि अगर आप एक बार उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर आप आ गए तो फिर आपको बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो इंडिया की ही टेरिटरी हैं, अलग से कोई कंट्री, अलग से कोई स्टेट नहीं है। अगर वो चाहे कि हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें अपना एक अलग कंट्री बनाना है, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं होगा। एज अ होल अगर हम देखें तो इंडिया एज अ होल इज़ अ कंट्री, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अलग अलग स्टेट्स, बट उन स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो अलग से अपनी कोई कंट्री बना ले, अलग से स्टेट बना ले जब भी उनका मन चाहे। तो इंडिया इज़ काइंड ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल एक टेरिटरी है जिसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, अनलाइक द फेडरेशन विच इज़ फॉलोड इन यूएसए। सो कमिंग ऑन टू द आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड क्या क्या होगा, व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन दी टेरिटरी। तो सबसे पहले तो टेरिटरी का मतलब क्या हुआ, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, फर्स्ट हो गया आपका टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो पहला तो स्टेट हो गया, जैसे स्टेट का एग्जांपल हो गया जैसे यूपी, बिहार, एमपी, ये सारे स्टेट्स हो गए। यूनियन टेरिटरीज मतलब आपका दिल्ली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो ये सारी आपकी यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो ये स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज एंड प्लस टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, जब कभी भी कोई ऐसी टेरिटरी है जो इंडिया एक्वायर कर लेती है तो वो भी किस में आ जाएगा, इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। तो यहाँ पे टेरिटरी का जो एक वर्ड है टेरिटरी, दैट इज वाइडर दैन द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया से भी एक वाइडर एक्सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा, सिर्फ स्टेट्स आ जाएंगे, कि मतलब हम इस फेडरल सिस्टम के मेंबर है और हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में एक तरह से उस पावर को शेयर करते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। बट टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब स्टेट भी हैं आपके, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और वो भी टेरिटरीज हैं जो फर्दर इंडिया एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ पे वो जो वर्जन होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया का, दैट वुड बी अ वाइडर वर्जन। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है एक तरह से वाइडर इन सेंस है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिटिकल यूनिटी एंड इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। पॉलिटिकल यूनिटी क्योंकि हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो एक तरह से लोगों के ही बेसिस पे है, तो लोगों के बेसिस पे तो यूनिटी उसी हिसाब से बनी हुई है, चाहे स्टेट की हो, चाहे अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो कंट्री की हो। तो वो सिस्टम जो बन रखा है दैट इज़ अ प्रॉपर सिस्टम, और उसको फॉलो किया जाता है, लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं एंड फर्दर द प्रोसेस गोज ऑन। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन का मतलब क्या हुआ कि इस जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होगा कि आज आज यूपी वालों का मन नहीं है तो आज हम नई कंट्री फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह का जो सेंस है, इस तरह का जो पावर है, वो किसी भी स्टेट को नहीं दिया गया है, या किसी भी स्टेट को अलग से कोई इस तरह का प्रॉपर कोई वर्जन नहीं है जिससे कि वो अपने आप को एक नई कंट्री बना सके। तो यूनियन ऑफ स्टेट इज द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन अब बन गया है, तो फाइनल यही है। नाउ कम्स आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, सबसे पहले तो क्या दे रहा है, ये पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज़ की, पहला, एडमिट न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बना सकते हैं, एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एज इट डीम्स फिट। तो आर्टिकल 2 कह रहा है पार्लियामेंट बाय लॉ क्या करेगा, एडमिट इनटू द यूनियन, यानी नए स्टेट्स को अपने स्टेट में ऐड कर सकता है। जैसे मान लो कोई एक टेरिटरी है जो इंडिया के जस्ट बगल में है और वो कह रही है कि मुझे इंडिया में मर्ज होना है, तो अब इंडिया किसी भी कंट्री को अपने में मर्ज करेगी तो एज अ स्टेट मर्ज करेगी। तो इंडिया के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास बेसिकली ये पावर है कि वो बाय लॉ किसी स्टेट को अपने टेरिटरी में एडमिट कर सकती है। वो पहले से स्टेट प्रेजेंट है, उसको बस एडमिट करना है, ठीक।
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ये एक पार्लियामेंट का कंप्लीट डिस्क्रिशन है कि वो कैसे नए स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट करे और किस तरह से करे। जैसे मान लो अभी हुआ था पहले, कुछ टाइम पहले नए स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा एरिया हो रहा है स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये एक रीज़न था, एक कंडीशन थी कि हमें लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चल पाएगा अगर बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, तो लेट अस डिवाइड दी स्टेट और फिर हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये पार्लियामेंट को ही फील होना चाहिए कि वाई वी नीड अ न्यू स्टेट, वाई देयर इज अ नीड ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर उसको लगता है ज़रूरत है तो दैट कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय दी पार्लियामेंट। जो आर्टिकल 2 है, एक तरह से दो तरह की पावर दे रहा है किसको, पार्लियामेंट को, कि जो स्टेट्स पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ये एडमिट वाले क्या हो गए, दीज आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, इनको बस क्या करना है, ऐड करना है, यानी ऐड कर लिया आपने। अब ये जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है, ये यहाँ पे क्या है, वो ऑलरेडी फॉर्म्ड स्टेट नहीं है, यहाँ पे दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग। इनको आपको क्या करना है, पहले तो आपको इन्हें बनाना है, आपको फॉर्मेशन करना है स्टेट का, तब आप नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड फर्दर उसको, वो क्योंकि नया स्टेट फॉर्म हो रहा है तो दैट मीन्स अपनी ही टेरिटरी में कहीं ना कहीं कुछ स्टेट को डिवाइड करके ही नया बन रहा होगा, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन का मतलब ये होगा कि बाहर, टेरिटरी के बाहर कोई स्टेट था उसको आपने एडमिट कर लिया। इसका एक एग्जाम्पल है सिक्किम्स इंटीग्रेशन इन 1975। जो हमारा सिक्किम है, दैट वॉज अ सेपरेट, एक तरह से एक अलग, उस टाइम पे एक अलग से स्टेट हुआ करता था सिक्किम, और सिक्किम को 22nd स्टेट इंडिया का बनाया गया था, जब उसको ये लगा था कि 1975 उसने इंडिया का पार्ट होने के लिए अग्री हो गया था, तो 1975 में उसको इंडिया की टेरिटरी में हमने इंटीग्रेट कर लिया था। नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 हमसे क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहाँ पे भी क्या है, पार्लियामेंट को कुछ पावर्स और दी गई हैं। वो पावर्स क्या क्या हैं, पार्लियामेंट में बाय लॉ, तो सबसे पहला क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन और यूनियन, या तो वो सेपरेट कर दे अपनी टेरिटरी में किसी स्टेट को, या तो किन्हीं दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को यूनाइट कर दे, या तो पार्ट्स ऑफ स्टेट को या फिर किसी भी टेरिटरी के, उस टेरिटरी का कोई पार्ट है उसको यूनाइट कर दे, मतलब किसी भी तरह से इधर सेपरेट कर दे या तो किन्हीं भी दो स्टेट्स या दो टेरिटरीज को यूनाइट कर दे। तो इधर बाय सेपरेशन और बाय यूनियन, अगर वो, उसके पास ये पावर है कि अगर या तो सेपरेट कर दे या तो फिर उसको, उसका यूनियन कर दे टेरिटरी का, तो वो नए स्टेट्स फॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहला तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ईदर बाय सेपरेशन और बाय यूनियन। दूसरा हो गया बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, जैसे पहले से कोई स्टेट था उसका थोड़ा सा एरिया और बढ़ा दिया, तो अब एरिया बढ़ा सकता है। दूसरा, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, उसका एरिया कम भी कर सकता है। बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, यानी कि उस स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, ऑल्टर इन द सेंस थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, कि अभी तक क्या था कि ये बाउंड्री थी, जैसे अगर ये दो स्टेट्स अगल बगल बने हुए हैं, तो क्या कर सकता है कि जैसे इस वाले स्टेट को और एक्सटेंड कर दिया, बोल दिया कि अब से ये वाली जो बाउंड्री है ये हट जाएगी और सिर्फ यही वाली बाउंड्री रहेगी, तो ऑल्टर कर सकता है, दैट मीन्स इट कैन चेंज बाय ऑल्टरिंग द नेम ऑफ एनी स्टेट। ऑल्टरिंग द नेम ऑफ एनी स्टेट मतलब कोई भी स्टेट का नाम है उसको चेंज कर सकता है। तो देखा जाए ऑल्टर क्या क्या कर रहा है, एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स। तो पहला हमारा हो गया, ये हो गया हमारा ऑल्ट्रेशन, यानी चेंज कर रहा है, और ये पहला वाला हो गया हमारा नए स्टेट्स का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है,
पहला कि अगर मान लो फॉर आर्टिकल 3 में जो पावर्स पार्लियामेंट को दी गई हैं तो उसका कोई प्रोसीजर होगा ये नए स्टेट्स फॉर्म करने का या फिर उसके ऑल्ट्रेशन का। तो प्रोसीजर क्या होता है कि अगर मान लो पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि हमें नए स्टेट फॉर्म करने हैं या फिर उसकी बाउंड्री, उसका नाम या एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ऑल्टर करना है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले क्या होगा, अब किसी भी बिल को पास करना होता है तो बिल को पास करने के लिए प्रोसेस अलग है। प्रोसेस ये है कि या तो वो एक्सेप्ट द मनी बिल, या तो वो लोकसभा में जाएगा या तो वो राज्यसभा में जाएगा। इन केस अगर कोई रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन को प्रॉपर मीट करके वो फिर लास्ट में जाता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। अगर मान लो प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो प्रेसिडेंट फिर से वो हाउस में उस चीज़ को बोल देता है कि इसमें ये करेक्शन हो जाए। इसके बाद जैसे ही करेक्शन होता है प्रेसिडेंट उसकी अपनी एसेंट दे देता है। पर यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है। प्रोसीजर क्या है कि अगर मान लो अगर हमें जो हमारा पार्लियामेंट है उसको अगर नया स्टेट बनाना है या उस तरह का कोई ऑल्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। जब तक कि प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करता इस चेंज को तब तक आप ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यानी कि नो बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट आपको रिकमेंड कर देगा कि हाँ ठीक है, सही है, नया स्टेट फॉर्म कर सकते हो या फिर ऑल्ट्रेशन है तो कर लो, तब जाके ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसी भी आपके हाउस में। If the bill affects the area, boundaries, or name of the states, the President is required to refer the bill to the concerned state legislature for expressing its view within a specified period. अब प्रेसिडेंट रिकमेंड कैसे करता है, प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या करेगा कि देखेगा कि बिल में क्या चीज़ें, क्या बाउंड्रीज या क्या नाम या क्या एरिया चेंज हो रहा है, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, सबसे पहले उस बिल को उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज देगा। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्यों भेजा जा रहा है, जिससे कि स्टेट लेजिस्लेचर अपना ओपिनियन बता सके या अपने व्यूज़ दे सके कि इस ऑल्ट्रेशन या इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या उसके व्यूज़ हैं, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर को दे देता है कि इतने टाइम पीरियड में आप में अपना व्यू दे दें। जब व्यू मिल जाता है तो प्रेसिडेंट फर्दर ये रिकमेंड कर देगा कि वेदर ये जो पार्लियामेंट ने प्रपोज की है चीज़, ये वेदर एज अ बिल किसी हाउस में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अब प्रेसिडेंट के पास है कि वो उसको कितना टाइम पीरियड दे दे, कितना एक्सटेंड कर दे उस टाइम को, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दी प्रेसिडेंट। अगर मान लो कि टाइम एक्सटेंड भी किया, पहले तो टाइम स्पेसिफाई किया, जैसे मान लो बोला कि 6 महीने में बता देना, स्टेट नहीं बता पाया तो प्रेसिडेंट ने थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड किया, मान लो 6 महीने और दे दिए, 1 साल हो गया। 6 महीने के बाद दोबारा 6 महीने मिले, टोटल 1 साल हो गया, पर स्टेट ने अपना व्यू नहीं दिया, तो यहाँ पे वो जो बिल है वो फर्दर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं किया विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना इज़ ज़रूरी। बट ये जो व्यूज़ हैं ये सिर्फ एक तरह का ओपिनियन है, पार्लियामेंट इन व्यूज़ से बाउंड नहीं है, वो इन व्यूज़ को इधर क्या है एक्सेप्ट भी कर सकती है, और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो व्यूज़ आए हैं उससे हमें बाउंड रहना है, पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड विद एनी ऑफ दीज व्यूज़, इट मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। अब क्या कहते हैं कि अगर मान लो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में अगर उनको कुछ सोचना है कि हमें किस तरह से ऑल्टर किया जाए या किस तरह से नई बनाई जाए, तो वहाँ पे किसी भी स्टेट, क्योंकि स्टेट के पास तो जाएगा नहीं, तो जो पार्लियामेंट है वो अपने आप से एक्शन ले सकती है एज इट डीम्स फिट। सो इससे अगर देखा जाए तो इट इज़ क्लियरली एविडेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रॉपर जो ये पावर है ये पार्लियामेंट को ही दे रखी है, और पार्लियामेंट अगर कोई नए स्टेट बनाता है या उसकी बाउंड्रीज, एरिया या उसके नाम को अगर चेंज करता है तो देयरफॉर वो
स्टेट की कंसेंट के बिना भी कर सकता है। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना ओपिनियन दिया कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, हम कोई नया स्टेट नहीं चाहते, या हमें अपने एरिया को इंक्रीज डिक्रीज या ऑल्ट्रेशन हमें कुछ नहीं करना है, बट दो क्योंकि वो पार्लियामेंट बाउंड नहीं है उनके व्यूज से, तो वो फर्दर अपना एक्शन अपने हिसाब से ले सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स ये सारे चेंजेस भी किए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश टू फॉर्म तेलंगाना इन 2014। सो दिस वाज द रीसेंट वन, जहाँ पे एक नया स्टेट बनाया गया था एक स्टेट को डिवाइड करके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 इज सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। ये इस क्या कहते हैं कि जो भी, देखो अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी लॉज हैं, आर्टिकल 2 में क्या लॉज हैं कि आप एडमिशन या फिर स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं नए स्टेट्स का। आर्टिकल 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये जो दो आर्टिकल्स हैं मे कंटेन अमेंडमेंट्स टू फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि यहाँ पे जो भी सेकंड और थर्ड आर्टिकल में चेंज हो रहा है, ये अमेंडमेंट्स फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल्स के कंप्लायंस में हो जाएंगे। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, मान लो कि कोई नया स्टेट ऐड हो गया, एडमिट हो गया, या फिर उसका नया स्टैब्लिशमेंट हो गया, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज के नाम के बारे में है, नेम ऑफ स्टेट्स का है फर्स्ट शेड्यूल, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। फोर्थ शेड्यूल क्या है, राज्यसभा की सीट्स के बारे में है कि नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड बाय ईच स्टेट टू दी राज्यसभा। तो अगर मान लो 2 या 3 में से कहीं पे भी अगर कोई चेंज आता है तो वो इन दोनों में भी चेंज के लिए रेडी होगा। Such laws are not constitutional amendments under Article 368। 368 क्या कहता है, ये हमसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। पर अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की वजह से कोई भी चेंज आता है, अगर इन दो आर्टिकल्स, ये दो आर्टिकल्स मैंने अभी बताया किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अगर इन दो में कोई भी चेंज आता है तो हम उसको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। और ये बाय सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू या फिर एक जो प्रॉपर आपका ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है उसी के थ्रू आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ये चीज़ें हो जाएंगी और इसको हम अमेंडमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमारा था पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी कम ऑन टू दी part 2 of the constitution, that is from article 5 to article 11। part 2 talks about the citizenship। अब देखो सिटीजन क्या होता है, सिटीजन मतलब एनी पर्सन बिलोंगिंग टू अ टेरिटरी, यानी ऐसा कोई पर्सन जो कि प्रॉपर फुल मेंबर है उस स्टेट का। अब अगर फुल मेंबर है तो देयरफॉर कि दैट सिटीजन इज बाउंड बाय लॉ। उस स्टेट में जिसका वो मेंबर बन चुका है वहाँ पे कोई लॉ होगा, और क्योंकि वो मेंबर बन चुका है तो ही मस्ट अबाइड बाय दोज लॉज। तो इस वजह से द सिटीजन इज बाउंड बाय द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। और क्योंकि वो बाउंड है उसके लॉ से, तो उसके पास कुछ ऐसे राइट्स भी हो जाते हैं उस टेरिटरी के ऊपर जो कि वो पर्सन इंजॉय कर सकता है। तो प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें तो अ सिटीजन is a person belonging to a territory and having the power to exercise his rights over that territory। Citizens are bound by law and are considered full members of any state। Citizenship क्या हो गई, Citizenship मतलब कि एक पर्सन और उसका जो स्टेट है उसके बीच की जो रिलेशनशिप है दैट इज सिटीजनशिप। देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक हो गया सिटीजन, एक हो गया एलियन। सिटीजन की डेफिनेशन पता चल गई कि सिटीजन मतलब मेंबर है वो स्टेट का। तो जो लोग सिटीजन नहीं हैं वो एलियंस हैं। एलियंस को हम कहते हैं सिटीजनशिप से इनको एक्सक्लूड कर दिया। तो सिटीजनशिप तो उनकी हो गई जो सिटीजन्स हो गए, सिटीजन्स के अलावा कोई भी फॉरेन पर्सन है उसको हम एलियंस बोल सकते हैं। अब आते हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं सिटीजनशिप के। देयर आर टू प्रिंसिपल्स, that is jus soli and jus sanguinis। जस सोली का मतलब होता है
right of soil. These both words are derived from Latin and just soil का मतलब ऐसा person जिसने citizen acquire किया है by taking birth in that nation, कि मान लो मेरा birth हुआ था इंडिया में, so that is why I am the citizen of India. Just sanguinis मतलब right of blood. Right of blood मतलब ऐसा एक तरह का citizenship का टैग जहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन वहाँ उस कंट्री में बॉर्न हुआ था या नहीं हुआ था. वहाँ ध्यान क्या दिया जाएगा कि हो सकता है उसके पेरेंट्स में से कोई एक उस नेशन में बॉर्न था, तो उसको हम बोलेंगे राइट ऑफ ब्लड. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने जस्ट सैंग्विनिस को उसको कंसीडर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझा. उसने जस्ट सोली को ज़्यादा एप्रोप्रिएट मेथड समझा था, क्योंकि जस्ट सोली क्या है, डायरेक्टली बाय बर्थ आपको अपने आप ही सिटीजनशिप मिल जाती है. तो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि सिटीजनशिप की बात करेंगे. सिटीजनशिप जो है वो तभी से लागू हो गई जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास कंट्रोल है रिगार्डिंग द मैटर ऑफ सिटीजनशिप. और ये जो सिटीजनशिप है ये एक तरह का यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है. दिस कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट. तो ये जो यूनियन लिस्ट है दैट कम्स अंडर द 7th शेड्यूल, और 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा सिटीजनशिप. नाउ कम्स आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 6 बोल रहा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. तो वन बाय वन इन आर्टिकल्स को हम देखेंगे कि आर्टिकल्स हमसे क्या कह रहे हैं. आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब सिटीजनशिप क्या कह रही थी. सिटीजनशिप ग्रांटेड टू पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया. सिटीजनशिप जो है वो उन्हीं लोगों को दी गई थी, दोज पर्सन्स हु वर डोमिसाइल्ड एंड बॉर्न इन इंडिया. तो पहली जो कैटेगरी हो गई वो किस तरह की हो गई, पर्सन्स डोमिसाइल इन इंडिया एंड बॉर्न इन इंडिया. दूसरा क्या हो गया, सिटीजनशिप और किन किन लोगों को मिली थी, पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया बट नॉट बॉर्न इन इंडिया. मान लो वो पर्सन खुद से बॉर्न नहीं हुआ है बट ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया. ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स मतलब या तो मम्मी या तो उनके डैड, दोनों में से कोई एक जो पर्सन है दैट वाज बॉर्न इन इंडिया, तो भी उस पर्सन को सिटीजनशिप ग्रांट करी जा सकती है. या फिर एनी पर्सन हु हैज़ ऑर्डिनरली रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 5 years or above before the commencement of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 5 साल पहले, इमीडिएटली बिफोर मतलब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसके 5 साल पहले, 5 साल से रह रहे थे वो लोग प्रॉपर रेजिडेंट की तरह, तो ही हम उनको एज अ सिटीजन कंटिन्यू कर पाएंगे. तो एनी पर्सन हु हैज ऑर्डिनरी रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया उसके पहले ही से वो 5 साल एटलीस्ट रह चुके हैं. उसके पहले वो कितने साल से रह रहे हैं डजेंट मैटर, कि इमीडिएटली बिफोर 5 साल तो रह ही रहे होंगे. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो वहाँ पे भी हम इनको सिटीजनशिप दे सकते हैं. सो दिस इज द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 6 सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान. अब ये उन सिटीजन्स के बारे में बता रहा है, वो लोग जो माइग्रेट करे थे इंडिया से पाकिस्तान. तो हुआ क्या था कि जो कोई भी जुलाई 1948 के में अगर कोई whoever migrated to India before 19 July 1949 उसको हमने कंसीडर कर लिया एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. अगर मान लो उसका कोई पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है तो भी हम उसको सिटीजन ऑफ इंडिया मान सकते हैं. दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि हो सकता है कि जब ये
जो मतलब लोग थे वो इंडिया में माइग्रेट करे थे आफ्टर द अबव मेंशन डेट। हो सकता है देखो इस डेट के पहले जो आ गए वो तो ऑलरेडी सिटीजन कंसीडर कर लिए जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो पोस्ट 1948 आए थे, तो वो जो 1948 के इस डेट के बाद जो लोग आए थे इनका कुछ प्रोसीजर था। देयर वॉज सर्टेन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर उन्होंने उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था या दोज वर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो भी हम उन लोगों को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मान लेंगे। तो ये स्पेसिफिकली किस कंट्री के बारे में बात हो रही है? दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि डिवीजन हुआ था इंडिया का, तो इधर से उधर लोगों का मूवमेंट था, तो किसको हम अपना सिटीजन मानेंगे किसको नहीं मानेंगे इसका क्लियरेंस बहुत ज़रूरी था। तो आर्टिकल 6 इस चीज़ को मेंशन करता है। रिमेंबर द डेट प्लीज। नाउ कम्स आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कह रहा है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अभी क्या था पहले वाले आर्टिकल में, देखो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब देखो ऐसे लोग जो इंडिया टू पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947, वो लोग जो माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान इस डेट के बाद आफ्टर 1 मार्च 1947 आर नॉट द सिटीजन्स। वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947 उनको हम सिटीजन नहीं मानेंगे। दोज पीपल आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बट यहीं पे एक और पॉइंट फर्दर क्या बताता है, इफ दे रिटर्न ऑन रीसेटलमेंट परमिट्स और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मान लो इस डेट के बाद वो चले तो गए, वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए बट वो वापस लौट आए, यानी कि दे रिटर्न ऑन रीसेटलमेंट, और उन्होंने क्या किया एक तरह से परमानेंट रिटर्न किया। बट ये जो परमानेंट रिटर्न हुआ है ये एक परमिशन के साथ हुआ, दैट इज एक परमिट के साथ हुआ। और वो परमिट किससे मिली? बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ से, कि अब हम परमानेंटली इंडिया में ही रहेंगे। तो ऐसे लोग जो 1 मार्च के बाद गए और जाने के बाद लौट आए, तो जो लौट आने वाले लोग हैं उनको हम सिटीजन्स मान लेंगे। और जो लौट के परमानेंटली लौट के नहीं आए या तो लौट के ही नहीं आए तो उन लोगों को हम सिटीजन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो 1 मार्च के बाद 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गया इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट वो सिटीजन तभी बन पाएगा कि अगर वो 1 मार्च के बाद चला तो गया बट रीसेटलमेंट या फिर परमानेंट रिटर्न के साथ एक परमिशन जो कि अथॉरिटी ऑफ लॉ ने इशू की थी उसके साथ वो वापस आ गया है, तो वहाँ पे हम उसको एक सिटीजन का जो एक दर्जा है वो दे सकते हैं। नाउ कम्स आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे लोगों की सिटीजनशिप जो इंडियन ओरिजिन है बट रहते कहाँ हैं? इंडिया के बाहर। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया who or either of whose parents or grandparents were born in India could register him or herself as a citizen ऑफ इंडिया विद इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो रहता तो अब्रॉड में है मगर अगर उसको रजिस्टर करना है एज अ सिटीजन थ्रू डिप्लोमेटिक कंसुलर ऑफिस, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि या तो ईदर ऑफ हिज या तो पेरेंट्स और या तो ग्रैंड पेरेंट्स, इन दोनों में से या तो पेरेंट्स में से कोई एक या तो ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक अगर यहाँ इंडिया में रहता है तो वो पर्सन भी क्लेम कर सकता है अपनी सिटीजनशिप। और किसके थ्रू? बाय डिप्लोमेटिक और बाय इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और डिप्लोमेटिक और कंसुलर ऑफिसेज। तो वहाँ पे वो अपने आप को एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकता है। दो वो इंडिया में नहीं रहता है, वो कहाँ रह रहा है? रिसाइडिंग अब्रॉड। नेक्स्ट इज आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। ऐसे लोग जो जिन्होंने अपनी मर्जी से, वॉलंटरली का मतलब क्या हुआ? अपनी मर्जी से किसी और स्टेट की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। तो किसी और अगर नेशन के सिटीजन हो तो इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कहता है
कि इंडिया का सिटीजनशिप वही ले सकता है जो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही सिटीजनशिप हो, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। अगर मान लो ऐसा पर्सन है जिसके पास किसी दूसरे फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप है, तो दो सच पर्सन्स आर नॉट कंसीडर्ड एज इंडियन सिटीजन्स, तो फिर वो वहीं की सिटीजनशिप ले सकते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट चलता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ऐसा पर्सन या वो लोग जो कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, अंडर दिस पार्ट आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। पार्लियामेंट के पास मतलब पावर है कि वो किसी भी जो भी एक्विजिशन है या टर्मिनेशन है सिटीजनशिप का, उसके रिगार्डिंग वो प्रोविजंस बना सकती है। तो यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होंगे वो इस चीज़ के अंडर आएंगे। ये आर्टिकल ये कहता है कि जो भी प्रोविजंस पार्लियामेंट बनाएगी, एवरी सिटीजन इज सब्जेक्ट टू ऑल दोज प्रोविजंस जो कि पार्लियामेंट बनाएगी रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ दैट सिटीजनशिप। यहाँ पे क्या है, जो पर्सन है जिसको इंडियन सिटीजनशिप मिल रखी है अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी 5 से लेके जो अभी हमारे सिटीजनशिप के टोटल जितने भी आर्टिकल्स हैं, तो उसमें अगर मान लो किसी भी आर्टिकल में अगर हमें सिटीजनशिप मिल रही है तो वो कंटिन्यू रहेंगे सिटीजन्स रहना, एंड दोज ऑल द सिटीजन्स विल बी द सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हम इस आर्टिकल में हमें मिला है तो फिर हम पार्लियामेंट की बात नहीं मानेंगे। आपको किसी भी आर्टिकल के थ्रू सिटीजनशिप मिली हो, यू मस्ट अबाइड बाय ऑल दोज प्रोविजंस, यू आर बाउंड बाय ऑल दोज प्रोविजंस। तो पार्लियामेंट के पास जो भी पावर है टू रेगुलेट दीज एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो ये जो सिटीजन्स हैं दीज आर दी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट पावर टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी अथॉरिटी है किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी इन इट्स हैंड्स टू मेक लॉज रिगार्डिंग एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट को एक तरह से एम्पावर करा जा रहा है कि आप लॉज गवर्निंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, आप सिटीजनशिप को लेके कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ बना सकते हो। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखो, इस आर्टिकल से ही निकल के आया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, दैट वाज इनैक्टेड ऑन 30 दिसंबर 1955। इसमें टोटल देयर आर 3 शेड्यूल्स एंड 19 sections। ये लॉ प्रॉपरली लॉ फॉर एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि एक्विजिशन है तो बाय बर्थ होगा, बाय डिसेंट होगा, बाय रजिस्ट्रेशन होगा, और बाय नेचुरलाइजेशन या फिर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो सकता है। इसके अलग अलग सेक्शंस इसी बारे में बात करते हैं। अगर मान लो आपका रेवोकेशन हो रहा है तो रेवोकेशन ऑफ सिटीजनशिप किस तरह से होगा कि आपने रेनunciate कर दिया, टर्मिनेशन हो गया या फिर डेप्रिवेशन हो गया। क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं इसमें, 4 से 5 बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, और अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955। छोटा सा एक्ट है बट इट primarily focuses on the citizenship and it is important and it aligns with the article 11। तो यहाँ से आर्टिकल हमारे कंप्लीट होते हैं। we'll move on to the questions now, starting with the question number 1। क्वेश्चन क्या कह रहा था, discuss the constitutional provisions regarding citizenship in India. How have the courts interpreted these provisions in the context of illegal migration? UPSC मेंस आंसर। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग विद दी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि सिटीजनशिप जो है दैट इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय दी पार्ट 2, दैट इज आर्टिकल 5 to 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एडिशनली मेंशन करना है, वी कैन मेंशन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो प्रोविजंस हैं ये बताते हैं कि इंडियन सिटीजन कौन होगा, और एक तरह से प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क कि सिटीजनशिप की एक्विजिशन टर्मिनेशन दोनों किस तरह से हो सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताएंगे फ्रॉम आर्टिकल 5 to आर्टिकल 8।
5 से लेके 8 तक, 5, 6, 7, 8 ये चारों आर्टिकल्स यहाँ पे इसके सबहेड्स में मेंशन करने पड़ेंगे। अभी इमीडिएटली हमने अपनी पुरानी स्लाइड्स में 5 to 8 डिस्कस किया है, तो वही 5 to 8 आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कम्स पार्लियामेंट पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है पार्लियामेंट की क्या पावर है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे आर्टिकल 11, क्योंकि आर्टिकल 11 से ही तो आप फर्दर पार्लियामेंट को एक तरह से अथॉरिटी मिल रही है कि आप सिटीजनशिप को लेके उसके एक्विजिशन या टर्मिनेशन को लेके रूल्स बना सकते हो। और क्योंकि आर्टिकल 11 से ही निकल के आया है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो यहाँ पे जो मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप है या सिटीजनशिप का जो लॉस होता है वो किन किन तरह से होता है, ये सब चीज़ें आपको सिटीजनशिप एक्ट ही बताता है। तो ये 2 सब हेड्स आ जाएंगे इस थर्ड हेडिंग के। नेक्स्ट कम्स जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए मांगी है? इलीगल माइग्रेशंस के लिए। तो देयर आर सर्टन केसेस, उसमें से हमने 4 केसेस मेंशन किए हैं। दैट इज फर्स्ट इज सर्वानंद सोनोवाल यूनियन ऑफ इंडिया, दिस वाज इन 2005। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, एक एक्ट था उस टाइम पे, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983। इसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। और कोर्ट ने ये हेल्ड किया था दैट इलीगल इमाइग्रेशन पोज्ड अ थ्रेट टू नेशन सिक्योरिटी एंड द राइट ऑफ लेजिटिमेट सिटीजन्स। वहाँ पे ये एम्फेसिस था कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 को एक तरह से बर्डन ऑफ प्रूफ का एक तरह से एक पॉइंट लाया गया था कि ऑन द एक्यूज टू प्रूव देयर सिटीजनशिप, कि मतलब अगर आप सिटीजन हो तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये उसी एक्यूज के ऊपर है अंडर दिस फॉरेनर्स एक्ट 1946 कि आप ही प्रूव करें कि आप कैसे सिटीजन हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आसाम सन्मिलिता महासंघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आया था केस 2014 में। इसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजन यानी कि सेक्शन 6A को इसने चैलेंज किया था। यहाँ पे क्या है, आसाम को लेके कुछ प्रोविजंस थे। जो क्वेश्चन था वो ये था, वैलिडिटी ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स हु एंटर्ड इंडिया बिटवीन 1966 एंड 1971। क्वेश्चन क्या था, इस चीज़ को लेके था कि जो लोग माइग्रेट करे हैं इंडिया में बिटवीन द ईयर 1966 और 1971, तो उनको जो सिटीजनशिप दी गई है उसकी क्या वैलिडिटी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर रेफर किया गया था और यहाँ पे इसका डिटेल एग्जामिनेशन को लेके यहाँ पे फर्दर एग्जामिनेशन इसका करवाया गया था, रेफर टू लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर डिटेल एग्जामिनेशन। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा था और उस मैटर को रेफर कर दिया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास कि आप फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन करिए दैट वेदर सेक्शन 6A वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। तो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई थी। फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है ऑन द रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A। बट बेसिकली क्या है, जो क्वेश्चन मार्क लगा था वो इसी चीज़ पे था कि जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम बांग्लादेश और डिकेड्स से ऐसा होता आ रहा है, तो क्या ये चीज़ क्या उनको हम एज अ सिटीज़न रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 6A पे एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग रहा था। फर्दर नेक्स्ट केस जो अब मेंशन करेंगे दैट इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC केस। ये जो NRC केस है दैट केम इन द ईयर 2019 में एक केस आया था दैट वाज रिगार्डिंग कि जो ये NRC है यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, इसके अपडेट करने के बारे में आया था इन आसाम का ही था, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही वहाँ पे माइग्रेशन हो रहा था। यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया था? टू आइडेंटिफाई द इलीगल माइग्रेंट्स। द कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द प्रोसेस बट डायरेक्टेड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ दोज एक्सक्लूडेड। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी प्रोसेस की, इसको कोर्ट ने अपहेल्ड करा और साथ के साथ डायरेक्ट क्या किया गया था कि जिन लोगों को एक्सक्लूड किया गया यानी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। लास्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA एंड इट्स जुडिशियल स्क्रूटनी।
CAA 2019 में एक तरह से आया था, जो कि एक तरह का सिटीजनशिप का जो एक पाथवे था उसको क्लियर करने के लिए था। यानी जो परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो यहाँ आ रही थी, दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, और इनके लिए एक डेट स्पेसिफाई की गई थी कि जो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले आया है। तो यहाँ पे क्या था, सेवरल पेटिशंस वर चैलेंज्ड इन द कोर्ट, और पेटिशंस को लेके आया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे कि वेदर CAA इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये जो 4 केसेस हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट टू मेंशन व्हेन इट इज द क्वेश्चन अबाउट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस रिगार्डिंग द सिटीजनशिप प्रोविजंस स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलीगल माइग्रेशन। लास्ट में जब आप अपना आंसर खत्म करेंगे तो दैट वुड बी फ्रॉम दी कंक्लूजन आपसे क्या कहेगा, कंक्लूजन में आप क्या बोलोगे, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली फ्रेमवर्क जो है वो दिया गया है सिटीजनशिप का, किस तरह से प्रोसेस होगा, क्या अमेंडमेंट्स होंगे, किस तरह के अमेंडमेंट से या किस तरह के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से चेंजेस आएंगे, ये हमें प्रॉपर पता है। कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली अपहेल्ड द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, और कैसे सिटीजनशिप को रेगुलेट किया जाएगा पर्टिकुलरली इन द केसेस ऑफ इलीगल माइग्रेशन। तो इसको हम तभी बैलेंस कर सकते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ ही इसको पैरेलली चलाएं। जो फ्यूचर रूलिंग्स हैं, देखते हैं CAA और NRC को लेके क्या रूलिंग्स आती हैं, और फर्दर सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं उनमें क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स सी क्या शेप फॉर्म करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट वाज examine the significance of Article 1 of Indian Constitution. How does it define the territorial extent of India? सेम, सबसे पहले यू विल स्टार्ट योर आंसर विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन दे दिया कि आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, दैट इंडिया जो है इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया की टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, एंड एम्फेसिस ऑन द यूनिटी एंड इनडिवाइजिबिलिटी ऑफ द नेशन। यानी वो यूनियन कैसे है, यूनियन फेडरेशन में डिफरेंस क्या है, यही आप इंट्रोडक्शन में बेसिक 4 to 5 लाइन्स में यू विल मेंशन। नाउ कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 1। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 1 में यही हो गया कि इंडिया का नाम क्या है, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। तो ये जो इंडिया का नाम बता रहा है, ये कौन सा आर्टिकल हमें बताएगा, आर्टिकल नंबर 1। तो पहला सिग्निफिकेंस यही हो गया कि इस फ्रेज से इंडिया दैट इज भारत, इससे हमें पता चल रहा है कि एंशिएंट और मॉडर्न का कितना अमेलगमेशन हो रखा है। साथ के साथ इट इज नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बट द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। तो ये एक पहला सिग्निफिकेंस बना। सेकंड इज प्रिजर्व्स नेशनल इंटीग्रिटी, यानी ये जो वर्ड यूनियन का यूज किया गया है, ये बताता है कि उस टाइम पे एक विजन था कि इंडिया जो है ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। और इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन किसका है, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है बट जो यूनियन है दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। स्टेट डिस्ट्रक्टिबल क्यों कहा गया है, क्योंकि स्टेट का स्टेटस ऑल्टर किया जा सकता है, नए स्टेट्स को फॉर्म किया जा सकता है, बट जो पूरा इंडिया है दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनिट। कोई स्टेट अगर चाहे कि हम इससे बाहर निकल जाए तो दैट इज नॉट अलाउड। थर्ड इज प्रोवाइड्स फॉर टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स, मतलब आर्टिकल 1 जो कह रहा है पार्लियामेंट को पावर एक तरह से दे रहा है कि वो स्टेट की बाउंड्रीज को भी ऑल्टर कर सकता है, मर्ज कर सकता है स्टेट्स को, नए स्टेट्स को बना सकता है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में है, जिसने अभी रिसेंटली तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया था। तो वो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट भी हम कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल 1 से ही इसका ग्लिम्स मिलता है कि नए स्टेट्स एडअप हो सकते हैं और जो नए स्टेट्स हम स्टैब्लिश भी करवा सकते हैं। फर्दर आर्टिकल 1 के आगे जो 2, 3, 4 हैं, ये इसका स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, मगर अगर देखें आर्टिकल 1 से ही हमें इसका आइडिया लग जाता है कि ये एक यूनियन है और यूनियन में एडिशन हो सकता है, यूनियन में एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, बट कोई भी स्टेट बाहर जाके एक नया कंट्री फॉर्म नहीं कर सकता। नाउ कम्स फोर्थ पॉइंट, दैट इज सपोर्ट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, मीन्स कि इंडिया के पास ये एक तरह का पावर है कि दैट इट कैन एक्वायर न्यू टेरिटरीज थ्रू इंटरनेशनल ट्रीटीज। जैसे कि
1961 में गोवा का इंटीग्रेशन कर दिया था। 2015 में इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, तो इससे इंडिया को भी थोड़ा लैंड का पार्ट मिला था। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के थ्रू भी इंडिया जो है वो नई टेरिटरीज को एक्वायर कर सकती है, क्योंकि देखो आर्टिकल 1 पहले ही बता देता है कि टेरिटरी क्या होगी। पहला स्टेट हो गया, दूसरा यूनियन टेरिटरीज हो गया, तीसरा वो टेरिटरीज जो फ्यूचर में इंडिया एक्वायर कर सकता है, तो दैट विल बी सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। नेक्स्ट है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1। अब फर्दर क्वेश्चन कह रहा है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में, तो सेम जो मैंने अभी बताया कि जितने भी स्टेट्स हैं यूनियन के, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, और वो सारी टेरिटरीज जो कि इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा थ्रू द ट्रीटीज, परचेजेस, कॉन्क्वेस्ट, किसी भी तरह से एक्वायर करे, दैट वुड बी दी पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब कितने स्टेट्स हैं करेंटली और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट आता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कौन कौन सी केसेस आए थे जो कि हमें ये इससे रिगार्डिंग आर्टिकल 1 के रिगार्डिंग जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए हो। तो पहला हो गया हमारा बेरूबारी यूनियन केस इन 1960। यहाँ पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था दैट आर्टिकल 1 डज नॉट गिव इंडिया द पावर टू सीड टेरिटरी टू अनदर कंट्री अनलेस एन अमेंडमेंट इज मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब ऐसा नहीं था कि आर्टिकल 1 के अंडर इंडिया अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को दे सकती है, और वो तब तक नहीं दे सकती जब तक कि कोई अमेंडमेंट इज मेड अंडर द प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 368। 368 से अगर नहीं गया है तो फिर इंडिया को अलाउड नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को दे दे। This judgment led to the 9th Constitutional Amendment Act 1960, facilitating the transfer of बेरूबारी टू पाकिस्तान। यहाँ पे अब क्योंकि स्टेट की ही बात हो रही, एक पार्ट की बात हो रही थी जो दूसरी कंट्री में जा रहा था, तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट एक्ट आया, क्योंकि अमेंडमेंट आना ज़रूरी था, तभी आप उस फर्दर पार्ट को दूसरी कंट्री का पार्ट बना सकते हो। तो एक अमेंडमेंट आया विच इज़ कॉल्ड एज 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1960 में ही आया। उसके थ्रू बेरूबारी को पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है केशव नंदा भारती केस 1973। यहाँ पे भी क्या बात हुई थी दैट द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ इंडियन यूनियन रीइंफोर्सिंग दैट स्टेट्स कैन नॉट सीड। यहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने यही बताया था कि जो भी स्टेट्स हैं उनके पास ये पावर है ही नहीं कि वो सिसीड कर जाए। सिसीड का मतलब ये कंट्री है जैसे और ये स्टेट है, तो स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि इस कंट्री से अलग हटके वो एक नई कंट्री फॉर्म कर सके। तो ये वाली जो चीज़ है दैट इज नॉट अलाउड। एक बार पार्ट बन गए तो दैट वुड बी फॉर एवर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था इस चीज़ को दैट इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ इंडियन यूनियन ही रहेगी, रीइंफोर्सिंग दैट स्टेट्स कैन नॉट सिसीड। फिर आता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। The court ruled that exchange of territory with another country requires a constitutional amendment as done during the Indo-Bangladesh Land Boundary Agreement 2015। तो जैसा कि देखो, जैसा कि ये पहला वाला जो बेरूबारी यूनियन केस है सेम टू सेम ऐसे ही हुआ इन दी 2015 विद लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में था। तो वहाँ पे यही हुआ कि अगर मान लो अपनी कंट्री का कुछ पार्ट अगर देना है तो दैट मस्ट कम अंडर द प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 368, वो अमेंडमेंट होना चाहिए। और इसीलिए कोर्ट ने भी यही रूल किया कि अगर कुछ भी टेरिटरी का एक्सचेंज होता है विद अनदर कंट्री तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा। वही सेम चीज़ें हुई ड्यूरिंग द इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट में। लास्ट आएगा हमारा कंक्लूजन, एंडिंग आवर आंसर। क्वेश्चंस के सारे पार्ट का आंसर हमने दे दिया है इसमें। अब कंक्लूजन में हम मेंशन करेंगे दैट आर्टिकल 1 प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग इंडियाज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और उसकी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको एक तरह से एक बहुत अच्छा रोल उसमें निभाता है। इट एंश्योर्स द यूनिटी ऑफ नेशन वाइल अलाउइंग फॉर टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरी हो, जब लग रहा हो कि हाँ बाउंड्रीज हमारी जो हैं वो कुछ रिफाइन होनी चाहिए, या फिर क्या टेरिटरी होगी, क्या ज़रूरत है, इसी हिसाब से जब भी फिट जब होगा उसी हिसाब से चीज़ों को चेंज किया जाएगा। बाय एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स,
It also safeguards the national integrity and prevents the sectionist tendencies. और ये क्या कर रहा है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो विजन है उसको और स्ट्रॉन्ग और इंडिया को और यूनाइटेड बनाता है. तो दिस वुड बी द एंडिंग ऑफ आवर आंसर एंड द टॉपिक. सो आई होप यू नो नाउ कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 हमसे क्या कह रहा है. So thank you for watching. This is the end of the video, and we'll start with the article 12 in our next video and cover the fundamental rights till the article 35. So see you then. Bye bye. Thank you.